Next, for the speech by our respected Chief Guest, Sir, we would like to welcome here on stage Sri Ravi Kumar Sir, IAS, Sub-Divisional Magistrate cum Sub-Divisional Officer, Deoghar. It's worth mentioning that Sir came here just a few days ago in a blood donation camp organized along with the Red Cross Society. He is a known face to us, and we indeed hope to listen something from him. Thank you, Sir. Swami Kamala Asthanand Ji Maharaj, Jantanand Ji Maharaj, Secretary of Ramakrishna Ashram Deoghar, and Kamala Asthanand Ji Maharaj, and the other respected the principal of Ramakrishna Ashram Deoghar, the parents of the students that have come here to see their wards felicitated at this school at the annual award distribution ceremony, and the dearest students of the lovely institution, of the revered institution Ramakrishna Ashram Deoghar. Good morning, namaste, namaskar, pranam. I feel the excitement and the energy is palpable here. The students are waiting so eagerly to get their prizes already. So I'll not take much time. At the onset, I'd like to congratulate this school with a great legacy on having invited me here to deliver a speech, to witness something incredible that has already happened, that has been delivered by the students of Ramakrishna Ashram. I was so amazed to see the students from class 6, 7, 8 performing like they are already professionals. Anything I'll say or I'm going to say will not make you a star, will not motivate you to do anything in your life, because you have already achieved the right direction that you are going in, and that is evident in front of all of us already. So a big applause to you, the students who have performed here today, and to the guests who have also performed here. Now, so I was here a few days ago at the blood donation camp, and Secretary Ji Maharaj and Principal Sir asked me to come here again to motivate you people. I think you people are motivated enough. Yesterday I was asked to introduce myself, but due to paucity of time I could not give an introduction. My name is Ravi Kumar. I am currently posted as Sub-Divisional Magistrate and Sub-Divisional Officer Deoghar. I am an IAS officer of 2022 batch. Fortunately, I am from Jharkhand only. I was a student 5 years back, just like you, studying at DAV Giridih. Then I did my engineering from IIT ISM Dhanbad, cracked the examination called JEE Advanced, and then went on to prepare for UPSC examination in Delhi. Prepared for a year, I stayed there in Delhi during the COVID times in the year 2020 and 2021. Fortunately, was able to grasp so much of the things that the teachers taught me, and qualified the examination with a rank of 38. I got my home cadre here in Jharkhand, and I'm so fortunate to be among the incredible students that you already are. Moving forward, I would like to congratulate the students who are going to get prizes for the hard work that they did during the entire year. This is a testament to the learnings, to the achievements, to the hard work that you do in your school throughout the year. Not just your hard work, but also the hard works of your parents, of the teachers who have put in a lot of effort to impart this kind of education to you. After the powerful performance of Mr. Pathak just before me, it was full of Veer Ras that we call. Veer Ras, you know, something that gives a sense of pride, sense of bravery, sense of courage in yourself. It is very hard to deliver a lecture that actually people are going to listen. I can see the excitement, the entropy that is actually flowing across the room towards the student. What I'm going to do is conduct a short quiz for you. 5 minutes. I'll ask 5 questions from the students so I can gather your attention, the attention of the people who are standing at the back, at the top, and at the side, who are somehow unable to listen to me. So, guys, attention. So I'm going to ask you 5 questions.
5 school level questions. It's a short quiz, huh? Whoever answers the most will get a prize from me. Are you ready? Are you ready? Actually ready? Right. So the first question is, in which year did Subhash Chandra Bose qualify the civil services exam? Anybody can raise their hand. There is no penalty for a wrong answer. I can't hear you. Somebody raise your hand and speak up. Yes, from the back. I see some brilliant student at the back. Please. Speak louder. 1920. Yeah, I got the right answer. Good, great. So the next question is, who is known as the father of geometry? So some brilliant students, I can't throw off such easy questions to you, right? Everybody is right, it is Euclid. So I'll ask some tougher questions. The next question is, what is the chemical formula of dolomite for class 11 and 12 science, if they are here? Anybody can raise their hand and speak up. Yes, please. Please, at the top. A bit louder, I can hear you a bit. Exactly. Very good. Great answer. Great. Okay. One easy question again. Who wrote the famous book Origin of Species? One easy question after one tough one. I know it's very easy for you. Now brace yourself for another hard question. Tell me, what is the chemical formula of butyl alcohol? I thought ethyl alcohol would be too easy for you, so I asked butyl alcohol. Right, correct answer. Thank you so much. Guys, great. This shows that all of you are attentive. This was just a short game to make you feel attentive, to make you involved in this game that we are playing here. So I believe now that I have your attention, and the winners are going to get some chocolates from me after some time, not in between the speech. Now that I have your attention, we go on with the formal program ahead. So today it is a very important day for all the winners, for all those students who are going to win the prizes here, and also for those who are not going to win any prizes. If you are not going to win any award, if you haven't won any award in the entire year, that doesn't mean that is a failure. The academics are something which rewards a systemized structure. Systemized structures, I mean, there are subjects, there are sports, disciplines where you get rewarded. But talents are beyond them. I believe, हिंदी में बोलूँगा तो बेटर समझ में आएगा कि prizes जो होते हैं वो पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में कुछ ऐसी चीज़ों के लिए दिए जाते हैं जो आपके टीचर्स या आपके इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पर टैलेंट की कोई लिमिटेशन नहीं होती. टैलेंट्स आर बियॉन्ड प्राइजेस. यहाँ से कुछ आपके स्कूल की ये लेगेसी है कि यहाँ से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स निकल चुके हैं जो दुनिया बदलने की काबिलियत रखते हैं. उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्लास से टॉप करके निकले हों,
या फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता हूँ. इट इज़ अबाउट वट यू थिंक, वट यू बिकम, वट यू थिंक वट यू बिकम. आप यहाँ से बाहर जाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, क्विज बोल रहे हैं, पोइट्री रिसाइट कर रहे हैं, आर्टिस्ट है, सिंगर्स बन रहे हैं. एंड आई कुड ऑलरेडी सी द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 परफॉर्मिंग विथ कोहून एंड गिटार एंड एसराज. इट वॉज अमेजिंग टू notice such talent here. It makes me deeply honored to be a part of this institution as a family, as sub-divisional officer being posted here in Devgar and come before you. There are three fortitudes, there are three virtues that I am going to share with you that is going to remain with you in your entire life. When we are trained in the IS Academy in Mussoorie, these ethics, these values, these three values play a very important role in shaping what we become in our career paths. पहला जो वर्च्यू है वो है करेज, ब्रेवरी, फॉर्टिट्यूड. एक एनेक्डोट शेयर करूंगा. 1940s का टाइम था. 1940s में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था क्या? हाँ, 1939 से स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था. तो इंडिया में होते थे नेपाल से आए हुए गुरखा रेजिमेंट्स. तो गुरखा रेजिमेंट्स आर नोन एज द वन ऑफ द फियर्सेस्ट फोर्सेज इन द वर्ल्ड, इंटायर वर्ल्ड. गुरखा रेजिमेंट्स के जो फोर्स होता है ना, एक फोर्स का एक आदमी जो है वो 20-25 को अकेले मारने की ताकत रखता है. एंड दिस इज रिवर्ड. वो नेपाल से आते हैं, हमारे पहाड़ी एरिया उत्तराखंड से आते हैं और इंडिया के लिए हमारे फोर्सेज में कंट्रीब्यूट करते थे. तो उस समय अंग्रेजों का इंडिया में राज था. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, यूरोप में इन्वेजन चल रहा है, जर्मनी के जिपर्स ऊपर में एरोप्लेन्स उड़ रहे हैं, नॉर्मंडी में अटैक कर रहे हैं, फ्रांस में अटैक कर रहे हैं, बीचेस में अटैक हो रहा है, बॉम्ब्स गिरा रहे हैं, उनके फोर्सेस कम कर रहे हैं. अलाइड फोर्सेस थे यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, और अपोनेंट में थे आपके रशिया. रशिया वॉज ऑल्सो अलाइड जर्मनी के साथ कुछ समय के लिए इटाली था. तो दिस वॉज अ मेजर फाइट बिटवीन जर्मनी एंड द अलाइड फोर्सेस. उस समय इंडिया यूनाइटेड किंगडम का एक डोमिनियन हुआ करता था. वी वर अ पार्ट ऑफ इट. तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए और हमारे आर्मी जनरल को बोले कि हमने सुना है कि आपके यहाँ के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है वो गुरखा रेजिमेंट है, उनकी 200 लोगों की टुकड़ी बनाइए और भेजिए अलाइड फोर्सेस के साथ, हम लोग रेड करेंगे. हम जब जर्मनी हमारे बीचेस पे, हमारे तट पे बॉम्ब गिराती है तो उसके बाद कई लोग मारे जाते हैं, हम भेजेंगे वहाँ गुरखा रेजिमेंट को फाइट करने के लिए. 10,000 लोग हैं और आप अपने बेस्ट 200 गुरखा रेजिमेंट को भेजिए. हमारे आर्मी जनरल ने भी 200 लोगों की गुरखा रेजिमेंट बनाई और भेजी फ्रांस में, जहाँ जर्मनी का अटैक चल रहा था. वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे आर्मी कमांडेंट, गुरखा के आर्मी कमांडेंट को बुलाया गया. बोला गया कि हम लोग फ्लाइट से 200 गुरखा रेजिमेंट्स को लेके जाएंगे, 200 के फोर्स को, वहाँ से उन्हें पैराशूट दे के गिराएंगे नीचे, और उसके बाद वो लोग बीच पे लैंड करेंगे डायरेक्ट हवा से, और 200 लोगों को 5,000 लोगों से लड़ना है और जीत के निकल के दिखाए. गए वहाँ पे, बोला अपने गुरखा रेजिमेंट के सामने कमांडर ने कि जवान, आज आपदा आ पड़ी है. ब्रिटिश ने हमें बताया है कि 200 लोगों की टुकड़ी 5,000 लोगों से फाइट करेगी. आपको एरोप्लेन से उतारा जाएगा, 200 फीट की ऊंचाई से छोड़ा जाएगा. तो अंग्रेज ने वहाँ पे एक जो ब्रिटिश कमांडर था वो बोला, कितने लोग रेडी हैं एरोप्लेन से नीचे कूदने के लिए, लैंड करने के लिए? सिर्फ 100 लोग आगे आए. 200 में से सिर्फ 100 लोग आगे आए. तो फिर जो इंग्लिश कमांडेंट था, उन्होंने हमारे गुरखा कमांडेंट से बोला, आप तो बोल रहे थे कि गुरखा रेजिमेंट के सारे लोग बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन आप हिम्मत की बात करते हैं, पर हमने बोला कि एरोप्लेन से कूदने के लिए कितने लोग तैयार हैं, तो उन्होंने बस 100 लोग आ गया है. तो गुरखा रेजिमेंट का कमांडेंट बोला, शायद आपको बताना पड़ेगा कि आपको इनको पैराशूट भी मिलेगा. तो 100 लोग जो गुरखा रेजिमेंट के थे वो 200 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट्स के कूदने के लिए तैयार हो गए थे. उन्हें पता भी नहीं था कि उन्हें पैराशूट मिलेगा, और दे वर रेडी कि हमारे कमांडेंट ने बोला है कूदेंगे और लड़ेंगे. 200 फीट की ऊंचाई से कोई बचता नहीं है अगर फ्लाइट से कूदेगा तो. लेकिन ये होती है करेज, ये होती है ब्रेवरी, ये होती है फॉर्टिट्यूड, ये होता है रिस्क. ये होता है रिस्क जो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं अपने करियर पाथ में लेना पड़ेगा. सेकंड जो वैल्यू है वो है इंटीग्रिटी. सेकंड वैल्यू जो है वो है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी जो वर्ड है, इट कम्स फ्रॉम इंटीजर, इंटीग्रल. इंटीजर इज समथिंग विच इज होल, विच इज कंप्लीट. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, it is complete, it is not in decimal. So I am asking you to be integral. Somebody is integral when there is no difference between what they think, what they speak,
and what they do, even when no one is watching. आप एक कंप्लीट पर्सन, कंप्लीट ह्यूमन बीइंग तभी बनेंगे जब आप जो सोचते हैं, आप जो करते हैं और आप जो प्रैक्टिस करते हैं, बोलते हैं, उन तीनों में कंसोनेंस हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अंग्रेज़ों से हिस्ट्री का एग्जांपल्स मैं ज़्यादा ले रहा हूँ क्योंकि हमारे एग्जांपल्स ही हैं जो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। आई नो दिस इज़ अ हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन फाउंडेड इन 1922। आई वाज रीडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस स्कूल, कैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ था स्कूल 1926 में। कोइंसिडेंटली मेरा कॉलेज जो ISM धनबाद है वो भी 1926 में ही सेटअप हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इंटीग्रिटी की जब बात कर रहे हैं तो मैंने आपसे एक क्विज के टाइम पे क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वाज द ईयर डिड सुभाष चंद्र बोस क्वालिफाई फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन स्टार्टर था इस स्टोरी के लिए कि 1920 में जब अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूनाइटेड किंगडम में होते थे उस टाइम पे, यूरोप में। उसमें स्पेनिश का एग्ज़ाम होता था, फ्रेंच का एग्ज़ाम होता था, इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था, लेकिन हिंदी नहीं होता था। सब्जेक्ट्स भी वैसे ही होते थे ग्लोबल। और वो लोग जो क्वालिफाई करते थे उस एग्जामिनेशन से, वो आते थे इंडिया में गवर्न करने के लिए। उसमें इंडियंस को बैठना भी अलाउड नहीं था, जो कि 1961 से हमने हार्ड वन फाइट जो है ना वो जीत के हमने अलाउ करवाया खुद को कि इंडियंस अपीयर कर पाए। सुभाष चंद्र बोस गए यूनाइटेड किंगडम एग्जाम में अपीयर करने के लिए और इन सब्जेक्ट के साथ उनके पूरे जो पूल ऑफ स्टूडेंट था उसमें 4th रैंक सिक्योर किया सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में सिविल सर्विसेज एग्जाम में। इन सब्जेक्ट्स के साथ जब क्वालिफाई किया उन्होंने, ये बड़ी बात नहीं है, इंडिया आए और उन्हें पता चला कि सिविल सर्वेंट्स को करना क्या होता है, यहाँ गवर्न करना होता है। उस समय इंडियन इंपीरियल सिविल सर्विसेज हुआ करती थी, उस समय वो लोग गवर्न करते थे, ऑफिस वगैरह सब सेम था, लेकिन वो गवर्नमेंट के अधीन नहीं, वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन होते थे। तो सुभाष चंद्र बोस अगर उस समय सिविल सर्वेंट बनते तब भी शायद उन्हीं कॉज के लिए काम पड़ता। उस समय 1919 में जब सत्याग्रह मूवमेंट गांधी जी का खत्म हुआ था, 1921 में हम लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पार्लियामेंट में सीट्स मांग रहे थे। सुभाष चंद्र बोस आते हैं वहाँ से एग्जाम क्वालिफाई करके 4th रैंक लेके, इंडिया आके बोलते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा इन गौरव के लिए, और एग्जाम से रिज़ाइन कर देते हैं सर्विस से। तो बड़ी बात ये नहीं थी कि एग्ज़ाम में उन्होंने 4th रैंक सिक्योर किया, बड़ी बात ये थी कि वो जो सोचते हैं भारत माता के बारे में, वो जो बोलते हैं भारत की आज़ादी के बारे में, क्या वो कर रहे थे, किया ना उन्होंने एग्ज़ाम छोड़ के। जब तीनों चीज़ मैच किया तो यही तो इंटीग्रिटी है जो आप में होनी है जब आप अपने करियर पाथ में जाएंगे। तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्च्यू जो स्टूडेंट्स में होना चाहिए वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही ऐसा वर्च्यू है जो आपको किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट बनाता है। आपको गिटार सीखना है, आपको वायलिन बजाने सीखना है, पूछिए आपके बैचमेट्स जो बजा रहे थे, कम से कम उन्होंने 500 बार कोशिश नहीं की होगी, प्रैक्टिस नहीं की होगी। वो ये जो मन है वो तो जाता है इधर उधर कि चलो ना थोड़ा सा घूम लेते हैं दोस्तों के साथ, थोड़ा सा फ़ोन में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पार्टी कर लेते हैं। लेकिन डिसिप्लिन जो है वो आपको कंसिस्टेंट बनाता है आपके गोल की ओर। आप स्कूल में हैं, आपको ये इन्वायरमेंट मिला है जहाँ पे आपके महाराज हैं, जहाँ पे आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, जो कंटिन्यूअसली 24/7 आपकी देखभाल कर रहे हैं, एक नज़र रख रहे हैं। आपको पता है कि एक क्लोज्ड रामकृष्ण मिशन आश्रम के दरवाजे के भीतर जो भी होगा वो कोई ना कोई देख रहा है, कोई ना कोई कंट्रोल में है। तो ये डिसिप्लिन में आपको रखा जा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इस स्कूल से बाहर निकलेंगे, जब भी जाएंगे 10th के बाद 12th के बाद, आपके पास पूरी दुनिया खाली होगी, आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा। आप ऐसे इंस्टीट्यूट से निकल के जा रहे हैं कि आप लोग सोचेंगे कि आरके मिशन से है तो डिसिप्लिन्ड है, इसको बताने की ज़रूरत क्या है। लेकिन आपके पास चॉइसेस का अंबार होगा, आप सोच नहीं पाएंगे कि हम करें क्या, परेशान हो जाएंगे कि इतनी फ्रीडम तो मैंने लाइफ में जी ही नहीं, क्योंकि ऐसी आज़ादी मुझे मिली ही नहीं थी। लेकिन उसी समय है जब सेल्फ डिसिप्लिन काम आएगा। वो सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे जो आप खुद अपने आप पे इम्पोज करेंगे। और अगर आपने वो इम्पोज कर लिया कि कुछ सर्टेन प्रिंसिपल है जिससे आप जीते हैं, कि आप सुबह उठना है तो सुबह उठते हैं, आप डेली कॉलेज जाना है तो डेली कॉलेज जाते हैं, मुझे ये ग्रेड्स अचीव करना है तो करेंगे, मुझे फुटबॉल खेलना है तो मैं खेलूँगा। यहाँ से जाने के बाद कोई बताने वाला आपको नहीं रहेगा, सारे डिसीजंस आपको लेने हैं। तो ये सेंस ऑफ डिसिप्लिन जो है वो आपको खुद में इम्बाइब करना पड़ेगा आने वाले 7-8 सालों तक। और अगर आपने ये कर लिया तो आप तो सक्सेसफुल होंगे। बाकी बची रिक्वेस्ट कि मेरी यूपीएससी लाइफ जर्नी के बारे में फिर कभी आऊँगा तो फिर बताऊँगा। आज के लिए मैं खड़ा हूँ आपके इन प्राइजेस के बीच में और आपके बीच में, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए
I'd say एक कोट बोलूँगा एडविन मार्कम की, जो कि विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बुक विंग्स ऑफ फायर में स्टार्टिंग पेज में लिखी थी. सुनिएगा कि फॉर ऑल द डेज प्रिपेयर, फॉर ऑल द डेज प्रिपेयर एंड मीट देम एवर अलाइक, फॉर ऑल द डेज प्रिपेयर एंड मीट देम एवर अलाइक, when you are the anvil bear, when you are the hammer strike. Thank you all. Thank you for having me here.